Limits by substitution. Write down, yes, limits by substitution. टॉपिक का नाम लिखो limits by substitution. इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन स्लाइटली, तो थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दो इस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cosec x -1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है पाई बाय 2 माइनस x द होल स्क्वायर. ओके, so what will be my substitution? See, substitution method is simple. क्या है, if x tends to a, substitute x is equal to a plus h, and as x tends to a, h will tend to 0. समझ में आए ना? Yes. Okay. So what will we substitute? Limit x tends to pi by 2. So as x tends to pi by 2, h tends to 0. Here x tends to pi by 2. So put x is equal to pi by 2 plus h, and as x tends to pi by 2, h will tend to 0. बराबर है कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes. So instead of x tends to pi by 2, we will have h tends to 0. बराबर है कि नहीं? अब pi by 2 minus h कितना है? Pi by 2 minus x. This is minus h. Yes or no? Yes or no? So cosec of x, I am substituting as pi by 2 plus h minus 1 upon minus h the whole square. बराबर है कि नहीं? Yes. Yes. Okay. So in trigonometry, सर ऊपर कोसेक है. क्या सर कोसेक क्या आपने कोस लिखा? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है. सर कोसेक क्या आपने कोस लिखा है? Okay, cosec है. Okay, right. Okay, so this is cosec. This is not cos. Cosec. Okay. So cosec, first of all, sine of 90 plus h. This is going to be cos h, and what quadrant is it? Second quadrant. Sine positive, so cos will be positive. Okay. So we can write this as limit sec h minus 1 upon minus h the whole square is h square. Correct? I know. सर सेक एच माइनस नहीं आएगा? सेक मतलब सेक ऑफ माइनस सेक आना चाहिए ऐसा. देखो यस सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है ना. साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग का साइन ही तो है, तो कॉस पॉजिटिव आएगा. समझ रहे हैं? कोसेक को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन. ओके, अब साइन ऑफ 90 प्लस एच, दैट विल बी नथिंग बट कॉस एच, एंड 1 अपॉन कॉस एच इज सेक एच. है ना? यस सर. यस. तो अब क्या करेंगे हम लोग, विल राइट दिस सेक एच एज 1 अपॉन कॉस एच. सेक एच को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर. बराबर है कि नहीं? So this will be limit h tends to 0, 1 minus cos h upon cos h into h square. We can write h square cos h. Yes or no? I know. Yes. Yes. Okay. So this is our new question now. Okay. So I'll write the new question here. Limit h tends to 0, 1 minus cos h upon h square cos h. Yes or no? Now we'll use the formula 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta.
So this will be 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. So 1 minus cos h will be 2 sin square h by 2. Okay. So 2 sin square h by 2 upon h square into cos h. तो आ गया आंसर. क्यों? So we'll take this 2 upon cos h outside. Okay. And inside we will have limit h tends to 0 sin of h by 2 upon h square. Okay. And sin square here. Okay. Cos h we can write here if needed. Okay. Because cos h will be cos 0 which is 1 itself. तो अंदर लिखो बाहर लिखो डायरेक्ट 1 तो भी चलो. Okay. तो ये क्या हो जाएगा 2 times cos h which is cos 0 limit h tends to 0 sin of h by 2 upon h by 2 the whole square into 4. Okay. So this whole term is 1. Sin x upon x is 1. So this will be 2 upon 4, which is 1 by 2. So the answer will come out to be 1 by 2. समझा ये? समझा सबको? Yes sir, समझा. Yes. Limit sin x upon x is 1. तो यहाँ पे हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? Limit h tends to 0 या h tends to 0 sin x upon x is 1. ये. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Limit h tends to 0 sin of h by 2 upon h by 2 the whole square. ये भी 1 स्क्वायर आएगा which is 1. समझाइए? है ना? इसको लिखो ये. समझा? यस यश समझ गए? यश रीता नहीं सर. नहीं समझा. मृण्मयी मृण्मयी Yes. see let me make you explain you once again. Okay. I'll do right from first step. ये नहीं समझा तो बोल दो मेरे को जैसे यश ने बोला. I'll explain again. आदित्य समझा तुम्हें ये? हाँ सर थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ. थोड़ा बहुत मत समझो पूरा समझो. देखो हाँ सर वही समझो वहां पे पूछ लो. जिस स्टेप में नहीं समझ में आया वहां पे पूछ लो. विवेक. Yes. So first step. Put x is equal to a plus h. मतलब pi by 2 plus h. Clear? Okay. Now here x tends to pi by 2. तो h tends to कितना? 0. है ना? है ना? तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? लिमिट x tends to pi by 2 के बदले लिखा h tends to 0. अब cosec of x, x के बदले क्या लिख दूं? pi by 2 plus h minus 1 अपॉन इधर क्या आएगा? pi by 2 minus x is minus h. बराबर है ना? अरे बोलो. हाँ सर. अब नहीं समझा तो देखो एक एक स्टेप देखो. एक एक स्टेप समझना है. पहले इधर तक तो पूरा समझा. ये सब्स्टिट्यूशन है मेरा. और ये सब्स्टिट्यूशन मुझे कैसे पता? मैंने तुम्हें बोला पूरा चैप्टर में यही सब्स्टिट्यूशन है. whenever limit h tends to a then we will substitute x is a plus h and h is tending to 0. That's it. यहाँ पे a का वैल्यू pi by 2 है तो pi by 2 plus h. समझा ये? समझा? अब x is pi by 2 plus h तो माइनस h क्या होगा? इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ तो माइनस h is minus pi by 2 minus x. Yes or no? Yes or no? h को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, x को राइट हैंड साइड लेके जाओ. तो नीचे का आएगा कि नहीं? है ना? अरे बोलो. h प्लस h उधर जाएगा. Yes. हो जाएगा और x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा. यस और नो? यस सर. Yes. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0. कोसेक को मैं क्या लिख सकता चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देगा? ऐसे. करेक्ट है? कोसेक इज 1 अपॉन साइन. कोसेक को क्या लिखा? 1 अपॉन साइन. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन ऑफ
pi by 2 plus h minus 1 upon minus h the whole square, which is h square. Correct है? yes, Okay. अभी साइन ऑफ 90 पाई बाय 2 मतलब 90, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या फॉर्मूला है? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो 1 into यहाँ पे cos h है, क्या आएगा? cos h, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, cos कैसा ये साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे cos में क्या आएगा? प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बैठा रहेगा उसको समझिएगा। तो 1 upon cos h minus 1 upon h square, so this can be written as limit h tends to 0 1 minus cos h upon h square cos h, बराबर है कि नहीं? यहाँ तक तो सब Yes. कुछ समझा? हाँ सर समझा। तो नया क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 minus cos h upon h square cos h, correct? Yes, So this will become limit h tends to 0 1 minus cos h. By using the trigonometry formula, we can write it as 2 sin square h by 2, बराबर है कि नहीं? yes sir, अपॉन डिनोमिनेटर में h स्क्वायर cos h है ना। अब अगर मैं यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट करूँ तो cos h क्या हो जाएगा? cos 0 तो 1 है, तो ये लिखने का कोई जरूरत है क्या? नहीं, cos क्या है? 1, तो मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by 2 अपॉन h को मैंने क्या किया? h by 2 द होल स्क्वायर इनटू 4 कर दिया, यस और नो? yes, देखो ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लिमिट का इस फॉर्म में लाना है, sin x अपॉन x। अगर नहीं समझ रहा तो देखो आराम आराम से करता है, sin स्क्वायर h ऐसे लिख दिया, समझा ये? अब इसको मैं अगले स्टेप में क्या करेगा? sin of h by 2 the whole square upon h by 2 the whole square into 4, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा वापस, है ना? अब इसको लिख सकते हैं yes, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of h by 2 upon h by 2 the whole square, बराबर है कि नहीं? और ये sin x upon x का लिमिट क्या आता है? 1, yes, अब 2 by 4 क्या हो जाएगा? 1 by 2, तो आंसर आ गया कि नहीं? यस और नो? yes sir, बस दैट्स इट, क्लियर? yes, राइट दिस। अभी तो समझा ये सबको? सबको समझा आप? हाँ सर, हाँ सर, किसी को भी डाउट है कोई भी स्टेप में? आदित्य समझा पूरा ये? हाँ सर समझा। रिचा? यस, तो लिख दो ये। डन। जैसे अगला पेज भी लिख दो फिर। ये थोड़ा अभी खुद से करने आना चाहिए। देखो मैं सब क्वेश्चन करके देगा उसका मतलब नहीं, बस खुद से भी थोड़ा करना चाहिए। You should be able to do on your own. That is the main aim. Okay. समझ लिया तो धीरे धीरे खुद से कोशिश करो, तो खुद से कोशिश करेगा तो आएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, In the next question we are given second question of exercise 7.5, limit x tends to a sin x minus sin a upon fifth root of x minus fifth root of a, correct?
यस और नो, यही क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म में है कि नहीं न्यूमरेटर? यस और नो? तो साइन यस सर। साइन डी, देखो मैंने तुम्हें बोला था ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बाहर होना चाहिए, कहीं ना कहीं लगेगा। ये आ गया, देखो साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, ये फॉर्मूला याद है सबको? तो साइन यस सर। सी का यस फॉर्मूला सर। 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, बराबर है कि नहीं? यस सर। ये नीचे का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, sin c minus sin। इज द आइडिया क्लियर? हाँ है ना? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos c plus d मतलब x plus a by sin c minus d मतलब x minus a by अपॉन रूट x minus रूट 5, बराबर है? यस। यस। अब क्या करेंगे? अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने के बाद देखो ये उस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में? 2 मैंने बाहर निकाल दिया, cos of x plus a by 2, ये तो टर्म कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अगर मैंने x को a रखा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। sin of x minus a by 2 और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? x raised to 1 by 5 minus a raised to 1 by 5, है ना? यस। यस। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 लिमिट x टेंड्स टू a डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो ये तो 2a अपॉन 2 व्हिच इज cos a, तो cos a बाहर निकल जाएगा, है ना? ये टर्म यस। आएगा, ये टर्म तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या हो जाएगा? विल बी लेफ्ट विद sin of x minus a upon 2 upon x raised to 1 by 5 minus a raised to 1 by 5। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? x minus a से। किससे डिवाइड करेंगे? x minus a। तो क्या फायदा हुआ? अब इसको तो डिवाइड बाय 2 से भी करना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ पे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? sin x अपॉन यस। 1 हो गया कि नहीं? तो 2 into 2 4 cos a अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? x raised to n minus a raised to n अपॉन x minus a, तो ये क्या हो जाएगा? n a raised to n minus 1 n a raised to n minus 1, बराबर है कि नहीं? तो 4 cos a 4 into 5 20 cos a अपॉन a raised to minus 4 का 5, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। n a n minus 1, बराबर है? ये एक थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, ये 2 है ना यहाँ पे, ये 2 से डिवाइड किया है, ये तो डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है ना? ये थोड़ा एक स्टेप खा लिया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसलिए ये देखो यहाँ पे मैंने 2 से डिनोमिनेटर का, यहाँ पे 2 से किया तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 नहीं आएगा, समझे? तो cos a अपॉन a रेज टू और ये 5, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5 a रेज टू 4 by 5 cos a, दिस दिखाना है, समझाइए? है ना? बस ये 2 मैंने सिर्फ यहाँ पे गलती से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड हो गया।
यस, समझा कि नहीं? थोड़ा हार्ड लगाइए, हार्ड लगाइए। यस और सर थर्ड स्टेप ओके, वापस पूरा बता दो। चलो, सो लेट मी शो वंस अगेन। यस, अच्छे से ऑब्जर्व करो। यस और नो, ऐसा है कि नहीं? व्हाट इज द आइडिया? फर्स्ट स्टेप, साइन सी माइनस साइन डी, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 बराबर है। So let us write this, limit x tends to a, 2 cos c plus d by 2 मतलब x plus a by 2 sin c minus d by 2 x minus a by 2 बराबर है। यस अपॉन x raised to 1 by 5 minus a raised to 1 by 5, करेक्ट? यस सर अब यहाँ पे x को a पुट कर दो, विल गेट रीड ऑफ दिस टर्म। x को a पुट कर दो, ओके। सो इन दैट केस दिस विल बी cos of a plus a upon 2 which is cos of 2a upon 2 which is cos a, yes or no? है ना? यस इसलिए मैंने 2 cos a बाहर निकाल दिया। लिमिट x tends to a, sin of x minus a upon 2 upon x raised to 1 by 5 minus a raised to 1 by 5। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यस यहाँ सर अब 2 cos a लिमिट x tends to a, sin of x minus a upon 2 अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने x माइनस a से डिवाइड किया और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी x माइनस a से डिवाइड किया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में भी x माइनस a, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में भी x माइनस a, यस और नो? ये चलेगा कि नहीं? यस सी बराबर है कि नहीं? क्योंकि x माइनस a कैंसिल हो गया तो वापस वही टर्म आ जाएगा जो वहां लिखा है ना? यस और नो? यस सर तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो अब देखो, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो चलेगा कि नहीं? देखो अगले स्टेप में करके बताता हूँ। दिस इज इक्वल टू 2 cos a लिमिट sin of x minus a by 2 अपॉन x minus a by 2 into 2। तो जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे। यस, ये नीचे अगर एक्सटेंडेबल रहता ना तो अच्छा रहता, तो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट नोट में नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, sin of x minus a by 2 upon x minus a by 2 into 2 upon limit x tends to a, x raised to 1 by 5 minus a raised to 1 by 5 upon x minus a। यस, ये क्या हो जाएगा? sin x upon x 1 होता है कि नहीं? है ना? तो 1 by 2 अपॉन na raised to n minus 1 बराबर है कि नहीं? है ना? यस So this is 1 by, अब ये 2 यहाँ का भूल गए हम लोग, 2 cos a भी है ना, 2 cos a लिखना भूल गए, 2 cos a 1 by 2 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? है ना? है ना? यस तो सिर्फ क्या बचेगा? cos a, ये 2 2 कैंसिल, सिर्फ cos a बचेगा न्यूमरेटर। और ये न्यूमरेटर 5 ऊपर जाएगा तो 5 cos a और a raised to minus 4 by 5। तो आंसर विल बी व्हाट?
5 a raised to 4 by 5 cos a. So this is the final answer. Yes or no? समझा? yes sir. बस किसी को भी डाउट रह गया इसमें? डाउट है? जल्दी बोलो. No sir. तो लिख दो ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये थोड़ा सा हार्ड है, मैं मान रहा हूँ. दिस एक्सरसाइज इज स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज इन्वॉल्विंग लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन आल्सो. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर में तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाते हैं. डोंट वरी, थोड़ा स्टेप वाइज ब्रेकअप करो, अपने आप आएगा. देखो हर स्टेप समझ में आ रहा है तो आगे जाके तुम्हें समझेगा. इस हर स्टेप समझा तुम्हें? एवरी स्टेप हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अभी लिख के हो गया ये? हैव यू रिटन दिस? Yes sir, हो गया. Yes, sir. ओके. थर्ड क्वेश्चन में वापस सब्स्टिट्यूशन करना है. तो साइलेंट करो उसका मोबाइल बज रहा है. यस, ऐसा क्वेश्चन है. हाँ है ना? x Yes. goes to 5. 5 लिख दिया मैंने. यस, ठीक है. तो देखो क्या होगा. फर्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू पाई प्लस h. है ना? है ना? H tends to 0. तो h इज पाई माइनस x. यस और नो? Yes. तो बस हो गया. डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखेंगे? h. तो लिमिट फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है सबको. h टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ x. x को क्या रखूं? पाई प्लस h. यस और नो? -2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? पाई माइनस x जो कि h है. क्लियर? Yes. रूट ऑफ, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा है cos ऑफ 180 प्लस h कितना आएगा? इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 into 90 प्लस h. दिस इज cos h. एंड कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट. AST tan पॉजिटिव तो cos नेगेटिव आएगा. समझा ये? Yes sir. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ पाई मतलब 180 प्लस h इज माइनस cos h. यस और नो? बाय ट्रिग्नोमेट्री. Yes. ये जो ट्रिग्नोमेट्री में बैठा है उसको समझेगा. अब cos ऑफ पाई प्लस h को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos h फ्रॉम दिस स्टेप. समझा ये? -2 Yes. अपॉन h स्क्वायर. अपॉन क्या आएगा? h स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम लोग? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो. रैशनलाइजेशन है ना? रूट a माइनस बी ऐसा कुछ है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं? यस और नो? लिमिट्स में Yes. हमने हमेशा क्या किया? इधर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. बराबर है? Yes. तो अब न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा? ये पाई माइनस cos I minus 4 minus 4. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? Yes.
अभी क्या करेंगे? 1 minus cos h upon यस, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच प्लस 2। अब हो गया कि नहीं? जो फॉर्म चाहिए था उसमें, हाँ है ना? 1 माइनस कॉस एच को क्या लिखेंगे? 2 times sin sin h by 2. अब इधर भी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय 4 इंटू 4, हाँ है ना? ताकि ये 1 हो जाए, ये Yes, क्या हो जाए? 1। यस और नो? yes, sir. तो बस cos ऑफ h, cos ऑफ 0 1, तो 2/4 इंटू 5 माइनस 1 4 2, तो 2/16 1/8 आंसर है। ये किसको समझा 1/8 आया ये? Yes, sir, समझा। यस, तो सारमान को समझा, बट किसी किसी को इस स्टेप में डाउट आएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया था, हाँ है ना? तब तो ये बीच का स्टेप तो तुम खुद से कर सकते हो, ये यहाँ पे किया कि नहीं, हाँ है ना? ये ट्रीट करने तो सबको आता है अभी। ये ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1/2 आएगा। यस और नो? ये आएगा सबको, हाँ है ना? तो यही तो यहाँ पे आ रहा है, Yes, वही फॉर्म बन रहा है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वही फॉर्म बन रहा है रैशनलाइज करने के बाद। क्लियर? यस, क्लियर है? yes. यस तो लिखो ये। लिख दिया? सर लास्ट में 2/4 इंटू 1/4 1/8 कैसे आया? 2/16 which is 1/8, 2/4 into 1/4, 2/16 which is 1/8। समझा? समझा क्या? सर 1/4 कैसे आया वो बताओ ना। तो 1/4 कैसे आया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, cos ऑफ 0 which is what 1, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा? 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4, तो रूट 4 2, 2 प्लस 2 4, तो इसमें 2 4। समझे? अभी समझा? यहाँ से हाँ सर समझा। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बता दो। Yes, the questions for limits by substitution tend to be quite long. Okay, थोड़ा सा लेंथी होता है ये क्वेश्चंस, लेंथी है तो थोड़ा डरो मत। These are typically थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस होता है, they are kind of lengthy questions. Okay. By substitution, whenever we have limits by substitution, it has to be slightly lengthy. Most of the questions. क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का एक स्टेप, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंपलीफाई करने का स्टेप, फिर लिमिट का नया क्वेश्चन बनता है, फिर सॉल्व करते हैं, तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। समझा ये? Yes, sir. कोई डाउट है? No. Shall I write next question? Sir, 1 minute. यस, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5/6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब 180, तो पाई/6 मतलब 30। मैंने बताया था पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई/6 रेडियन कितना होगा? 180/6 which is 30। क्लियर है? Yes, sir. यस। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग cos x minus √3 sin x
अपॉन पाई माइनस 6x। करेक्ट है, ये क्वेश्चन है कि नहीं? तो व्हाट विल आई Yes. सब्स्टिट्यूट? x is pi by 6 plus h, yes or no? So x minus pi by 6 is h, Yes. तो 6x minus pi is equal to 6h, pi minus 6x is equal to minus 6h। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि नहीं यहाँ पे, है ना? In the denominator will substitute Yes. what? Minus 6h, correct? Yes, sir. और x टेंड्स टू पाई बाय 6, तो h कहाँ जाएगा? 0, तो h टेंड्स टू 0, cos ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाय 6 प्लस h, है ना? माइनस √3 इंटू साइन ऑफ x को क्या लिखेंगे? पाई बाय 6 प्लस h अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस 6h। यस और नो? Yes. यस। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। यस और नो? माइनस √3 Yes. cos a प्लस b, फिर से सॉरी sin a प्लस b। sin a प्लस b का क्या आएगा? sin a प्लस b इधर, तो sin In a a plus B. sin a cos b Plus B. cos a Plus cosec. sin b, है ना? Yes. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस 6h। Minus 6h. अब सब्स्टिट्यूट करो, cos 30 sin 60 √3 by 2 cos h माइनस sin 30 हाफ। यस और नो? फिर से Yes. sin 30 हाफ cos 30। करेक्ट है कि नहीं? अब सिंप्लीफाई करके तुम आंसर Yes. निकाल पाओगे। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल होने दो। देखो क्या कैंसिल हो रहा है मैं बताता हूँ, ये और ये कैंसिल होगा, है ना? और क्या बचेगा? माइनस Minus sin h बचेगा। ऐसा बचेगा कि नहीं? ये सॉल्व है ना? √3 भी है ना? ये मैं गलत किया, √3 भी है। यस, क्या और माइनस √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, -3 by 2 -1 by 2, तो -4 by 2 -2, तो -2 sin h अपॉन -6h, ये sin h अपॉन h 1, तो 1 by 3। समझ में आया? ये -2 अपॉन -6 Yes, sir. 1 by 3। क्लियर है? हार्ड लगाइए किसी को क्वेश्चन, Yes. किसी को हार्ड No, लगाइए। sir. सर लास्ट वो रेड इंक में लिखा है वो वापस समझाना। क्लास स्टेप, यस। ये देखो, ये दोनों का टर्म कैंसिल हुआ, ये दोनों। ये अब ये देखो √3 मल्टीप्लाई भी होगा ना इधर, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो -3 by 2 -1 by 2 sin h, तो -4 by 2 sin h -2 sin h, तो -2 sin h न्यूमरेटर में, -6h डिनोमिनेटर में, तो sin h upon h 1, तो -2 upon -6 is the answer, which is 1 by 3। That's it. Clear? यस सर। Yes. डाउट है किसी को? No. यस, विवेक, आदर्श, आदित्य, Yes, sir. हर्ष, मिली, मृण्मयी, ऋचा। No, sir. ओके, ठीक है, मान लेते हैं सबको समझ गए। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्लाइड एक और एक बार दिखाओ ना, मेरा थोड़ा रह गया। ये वाला
हार्ड लगा बट ये क्वेश्चंस बहुत No. हार्ड है क्या? लेंदी है मानता है लेकिन हार्ड तो नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक आता रहेगा सब फॉर्मूला तो ये मतलब लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है, समझ रहे हैं? ऑल दिस क्वेश्चंस आर स्लाइटली लेंदी बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। यस और बेसिक फॉर्मूलाज यूज करते जाओ अपने Yes. आप। करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यस तो फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x square अपॉन sin of pi x। तो पहले हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो 1 minus 1 0 अपॉन sin of pi वो भी 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो चलेगा क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? है ना? नहीं। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है मैंने तुम्हें पहले ही बताया। सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है? अगर x टेंड्स टू 0 है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे हम लोग। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं? when x tends to a, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x is a plus h and x tends to 0। क्लियर है ना? तो यहाँ पे x tends to 1 है तो x को क्या पुट करेंगे? 1 plus h। करेक्ट है कि नहीं? है ना? लेट अस पुट x at as what? 1 plus h। करेक्ट है? है ना? Yes. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब h टेंड्स टू 0, तो 1 minus x बराबर है। Yes. तो ये क्या होगा? h टेंड्स टू 0 अपॉन साइन ऑफ पाई प्लस पाई h। करेक्ट? अभी 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ h इंटू h प्लस 2 अपॉन साइन ऑफ पाई कॉमन, पाई प्लस पाई h क्या आएगा? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो दिस इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा एंड 180 प्लस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। क्वाड्रेंट क्या है? ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई h it will be minus sin pi h, है ना? ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे समझ में आया? देखो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पहले लर्न किया था, मैं बोला था वापस हर चैप्टर में लगेगा। ये समझाई? हो गया? अब हो गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस कैंसिल, न्यूमरेटर में h प्लस 2 होता है अपॉन साइन ऑफ पाई h है, h में नीचे लिखा है और पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बराबर है? अब ये तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? h प्लस 2 अपॉन पाई, और h को 0 डालो तो 2 अपॉन पाई आंसर। क्या आंसर है फाइनल? 2 अपॉन पाई। किसको समझाइए? Yes, sir. समझा। यस। और किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? ये भी क्वेश्चन है। साइन ऑफ पाई h, ये h को नीचे लेके गया, फिर पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, पाई रह गया तो h प्लस 2 अपॉन पाई, h को 0 डालो हो गया। क्लियर है? तो जिसको नहीं समझा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा। ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। तो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। ओके as you practice more and more questions this will become easier and easier। हार्ड लगा था लेकिन ये किसको इजी लगा सच्ची बताओ एक एक करके? No, sir. Who found it easy? एक तो अरमान को इजी लगा, और किसको इजी लगा? विवेक इजी लगा तुम्हें? आदर्श? हाँ सर। आदित्य यस सर। इजी है?
है ना? हाँ सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी करता हूँ। इस बार इसको थोड़ा सा अभी धीरे धीरे इजी हुआ, पहले से तो इजी लग रहा है। हर्ष, yes sir इजी लगा हार्ड लगा? मृन्मयी, ऋचा, सक्षम, शुभम, वर्षा, समझा सर। यस सर। यश, हाँ सर इजी यस है सर। यस यश वर्षा को समझाए। और किसने सर बोला? किसने बोला? जल्दी बोलो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा। अब देखो पूरा 100% तो नहीं समझाएगा, मेरे को भी पता है कि 100% तो एक दो कोई समझता है, बट एटलीस्ट इतना हार्ड तो नहीं लगा बहुत ज्यादा। इस बहुत ज्यादा हार्ड लगा ऐसा तो हुआ नहीं, समझे? इस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे। अब देखो ये सब क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें इजी क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगने लगेगा। आफ्टर यू हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इजी क्वेश्चंस विल लुक इजी। अब इजी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं लगेगा, समझे? ये वाला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट इजी क्वेश्चंस नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इजीली। जैसे मैं कुछ इजी क्वेश्चंस ले रहा है, पहले से 5 क्वेश्चन लेगा इजी वाला, ठीक है? तो ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबके सब आप खुद से कर लो इजी क्वेश्चंस, ठीक है? अब मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, ओके? अब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है सब। थिंक एंड सॉल्व। कौन सा मेथड यूज करेंगे बोलो इसमें? व्हाट इज द मेथड व्हिच विल यूज? रैशनलाइजेशन करने से पहले हमेशा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चेक करो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा 1/3। हाँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आएगा। देखो रूट ऑफ 6 प्लस 1/3 3, रैशनलाइजेशन बराबर है। अगर 0.0 होता तो रैशनलाइज करते, यहाँ पे 0.0 है ही नहीं, समझाई? ऐसा है कि नहीं? तो 3 माइनस 2 अपॉन 3, 1/3, क्लियर है? यस सर। तो दिस द आंसर। अब तो इजी लग रहा है एग्जांपल, है ना? हाँ सर एकदम इजी लगा। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि फिर से इजी लगेगा तुम्हें। लिमिट टेंड्स टू 3। बस इजी मतलब ये मत सोचो कि हमेशा हम लोग ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, कोशिश करो कैसे आएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो पहले क्या हो जाएगा। 3 इंटू -9 0, 9 माइनस 12 प्लस 3, 0.0 आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है क्या? नहीं। नो सर। क्या करेंगे फिर बताओ, क्या करेंगे क्या? ये देखो 2z² माइनस 3z माइनस 9 अपॉन z² माइनस 4z प्लस 3। तो कौन सा मेथड से करेंगे बताओ जल्दी? फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करो तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस 3 फैक्टर कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? z माइनस। फैक्टराइज करो। So these are the factors. अब कौन सा कैंसिल होगा? तो क्या आएगा आंसर? The final answer will be what?
9 पर। क्लियर? हार्ड था ये क्वेश्चन? नो सर, इजी था। अब इस तरह का क्वेश्चन तो तुम लोग कर पाओगे एवरीवन? हाँ सर। यस, ये लिखे हो गया तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यस सर, डन। सबका हो गया? यस सर। यस और नो, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए? पहले तो जीरो सब्स्टिट्यूट करके देखो, 1 - 1 0, 0 अपॉन 0, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सर इसका लाइक है सर। यस, करेक्ट है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा? a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ऐसा होगा। यस सर। तब क्या कैंसिल होगा? -1 + 1। अब -1 + 1 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? x भी कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आ गया आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0। 1/1 सर। अब x को 0 पुट करो। क्लियर है ये? यस 2 to 1 is 1, 1 + 1 is 2। हार्ड लगा? यस, किसी को हार्ड लगा एक क्वेश्चन? लिख लो ये। लिख लिया? सर, डन। तो एग्जांपल 4, ये क्वेश्चन, तो ये कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, 1/7 करेंगे, या तो न्यूमरेटर में 7 लिख दो, या तो कहाँ लिख दो 7, बराबर है कि यस 7 कैंसिल हो गया तो ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। ऐसा अब 7 बाहर निकाला। यस सर। लिमिट ऑफ व्हाट? ऑफ 7 थीटा अपॉन 7। यस और नो? 1 1 हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 7। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें 7 कैसे आया? नो सर, इजी। इजी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन तो इजी लग रहे हैं सबको। यस यस, ये कौन सा क्वेश्चन था? 4 था ना? 5th। इसको क्या लिखेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? sin of 8x upon x upon बराबर है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, sin of 8x upon 8x और into 8 कर देंगे and upon limit x टेंड्स टू 0, tan of 4x upon x, बराबर है 8/4। यस दिस इज 2। समझा सबको कैसे किया? यस सर, समझा। 8 बच गया है, यहाँ पे 8 बच जाएगा, बाहर निकलेगा, 4 बच जाएगा, बाहर निकलेगा, 8/4।
बाकी ये तो 1 है, sin x upon x का tan x upon x, x tends to 0, हाँ है ना। Yes. तो अब ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड लग रहा है किसी को? No, sir. एक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख दिया वो पिछला क्वेश्चन की, बाकी है Yes, sir. लिखा। एग्जांपल 6। इसमें क्या करेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है क्या? नहीं। No. पुट x इज pi by 2 plus h, तो लिमिट जैसे जैसे x h pi by 2 plus h हो जाएगा तो h कहाँ जाएगा? 0। cos ऑफ x के बदले क्या रखा? pi by 2 मतलब 90 plus h अपॉन x minus pi by 2 क्या हो जाएगा? h। अब cos ऑफ pi by 2 मतलब 90, cos ऑफ 90 plus h ये क्या हो जाएगा? माइनस। साइन क्या आएगा? प्लस या माइनस? तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो माइनस। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा था, माइनस sin h अपॉन h। क्या आंसर आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h 1 माइनस 1 इज द आंसर। समझाइए? Yes, sir. कोई डाउट है? No. तो अभी तो थोड़ा इजी लग रहा है ये सब, है ना? Yes, sir. एटलीस्ट इन 6 एग्जांपल जो लास्ट में किया हम लोग ने, दीज आर क्वाइट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। बस बोलो जल्दी। Yes, sir. इसी है। इजी है। बस तो ये लिमिट्स अभी समझ में आ गया सबको कैसा टॉपिक है। इसमें हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन बचा हुआ है, और बाकी सब तो समझा सबको लिमिट्स में कैसे करना है हैंडल। Yes.